Hello students, welcome back in my class biology and 11th standard NCERT syllabus chapter number 6 complex tissue. Today I am explaining you this topic complex tissue. Complex tissues. I explain in chapter 6 the anatomy of flowering plant, and flowering plant means most of gymnospermic plants. And I am explaining you its anatomy, and I explain the structure of tissues and as a simple tissues, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now we take the complex tissue. What I said you about the simple tissues, which have the same kinds of cell, these tissues are simple tissues, and complex tissues which have the different kind of cells. Different kind of cells for same function. Different kind of cells for same and specialized function. All these tissues are called complex tissues, and we can say to this vascular tissues also. Vascular tissues also we can say to this, and there are two types of vascular tissues. And first is xylem and second is phloem. This is the plant morphology. This is the root, the well-developed angiospermic plant morphology like this. Okay, root, stem and branching and leaves. Okay, and leaves when it's made the organic food for the plant, then there is occurs the flowers, and flowers are converted into the fruit. Up to the like this structure, and all works this is the morphology only. We can see when external structure, but we have to find its anatomy. Then we cut the stem of TS of stem, then we cut the TS of root, and we observe under the microscope. Then we find the vascular tissues structure, and like this structure we can observe in the microscope. This is the anatomy of vascular tissues as a xylem tissues. Okay, जब मैं आपको anatomy of root और stem बताऊंगी, ये आपके बायो के प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आता है, तो उसमें हम रूट का और स्टेम का टीएस जब काटते हैं तो माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें वेस्कुलर टिश्यूज भी नजर आते हैं, और इस तरह का यहाँ पे हमको ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह का ऑब्जर्व होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप एनाटॉमी देखेंगे तो आपको जाइलम का यह स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? एट फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी टिश्यू की एनाटॉमी पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है, उसकी सिचुएशंस कहाँ पर है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये तीनों के अंदर आप इसकी स्टडी करेंगे एंड डायग्राम, तो आपका वो कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो एट फर्स्ट आई ड्रॉ ए डायग्राम of the xylem tissues. And what are xylem tissue? Xylem tissues function, main function is transport of water and minerals from the root to stem and stem to the leaf. Up to its transport the water and minerals in a fluid form, only in a fluid form. Okay, जो xylem tissues होते हैं वो रूट से लेकर के स्टेम तक और स्टेम से जो ब्रांचिंग होती है वहां तक, लीव्स तक, अप टू लीव्स, ओनली अप टू लीव्स, रूट टू लीव्स, लीव्स तक जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्शन करते हैं वह ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओनली डन बाय जाइलम टिश्यूज। अंडरस्टैंड? तो आपको इसका मेन फंक्शन समझ में आ गया। और ये वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसके अंदर लीव्स जो होती है, उसकी ब्रांचिंग होती है, उनके अंदर मोस्ट ऑफ ऑकर्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म विदाउट फ्लावरिंग होते हैं बट फ्रूट्स होते हैं इसके लिए। ओके, तो जाइलम टिश्यूज इसीलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं, और इन्हें के वेस्कुलर बंडल्स के रूप में अरेंज रहते हैं। इस तरह से देखिए डायग्राम, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स के रूप में अरेंज रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स from root to stem and stem to up to the leaves. Okay, next function is it's provide chemical strength. यहाँ से यहाँ तक जाइलम टिश्यू
स्पेशलाइज्ड टाइप की 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट से कंपोज्ड होता है। फर्स्ट है ट्रैकिड्स, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिड्स का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वेसल्स, यहाँ पे ये वेसल का डायग्राम दिया है। जाइलम फाइबर्स, इसके अंदर इस तरह से रेशियस टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो फाइबर्स कहलाते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, इसके साइड में जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनकी इस तरह की लेयर होती है जो जाइलम पेरेन्काइमा कहलाती है, ठीक है। तो अब इसका हम फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो होता है वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपको डायग्राम से ही दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और मोस्ट ऑफ इसके अंदर डेड सेल्स होती है। यह सेल्स मैच्योर होती रहती है, उसके बाद में डेड हो जाती है, वह स्ट्रक्चर जाइलम का कहलाता है ट्रैकिड्स। इसके बाद में वेसल्स, वेसल्स देखिए यहाँ पे होलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल इस तरह का स्ट्रक्चर और होलो स्ट्रक्चर, ये वेसल्स होती है। और वेसल्स से ही लगे होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। जो वेसल्स होती है वह फूड को स्टोर करने का काम करती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। फिर इसका आता है जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वह लाइव टिश्यूज होते हैं जो इसके अंदर सेल डिवीजन का फंक्शन करते हैं। जो सेल्स होती है वह इसमें डिवीजन होकर मैच्योर होती रहती है, और एक बार डिवीजन होने के बाद फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ये काम करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, जो लाइव टिश्यूज कहलाते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ इसका जाइलम जो है वह लाइव है और यह वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा का वर्क होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड एज ए फैट, एंड इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके स्टूडेंट, अब इसमें जाइलम भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया है सर्कल वाला, तो अगर आप इसकी एनाटॉमी ऑफ रूट और स्टेम देखेंगे या आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे, इसका टीएस काटेंगे आप रूट और स्टेम का प्रैक्टिकल में, तो आपको वहाँ पे माइक्रोस्कोप में सेम टू सेम इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर देख करके अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या होता है। यह जो सर्कल वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है जाइलम, ठीक है। ये है जाइलम कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज, और ये 2 टाइप्स की बताए, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ये देखिए जो यहाँ पर आ रहे हैं ये होता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल की जो लेयर पर यहाँ पर साइड में आते हैं ये कहलाते हैं प्रोटोजाइलम। यह इसका प्रोटोजाइलम जो होता है, यह इसका जो होता है सेकेंडरी, यहाँ पे है मेटाजाइलम, ठीक है। जो प्राइमरी इसका डिवीजन होता है वह प्रोटोजाइलम के रूप में, और जो सेकेंडरी डिवीजन होता है वह मेटाजाइलम के रूप में होता है। मेटाजाइलम जो होते हैं सेंटर में होते हैं, और प्रोटोजाइलम जो होते हैं यहाँ पे पेरिसाइकल्स के यहाँ पे होते हैं, और मेटाजाइलम मिलकर के यहाँ पे स्टेम का पिच बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया एंडार्च और एक्सचार्ज, जो बाहर की तरफ है आउटर साइड पेरिसाइकल के वो एक्सचार्ज, और जो पिच के अंदर सेंट्रल के अंदर है वो होते हैं एंडार्च। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना पूरा जाइलम टिश्यूज का कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का स्ट्रक्चर जो है डन हो गया है। अब इसके बाद दूसरा वाला लेते हैं फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रूट होती है उससे लेकर के लीव्स तक मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं जाइलम। फिर लीव्स से फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट, और फ्रूट के अंदर सीड तक जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, यहाँ पर सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो जाइलम होता है वह लिक्विड और लिक्विड फूड मटेरियल लेता है, ठीक है। लिक्विड ऐसे फ्लूइड के रूप में वाटर और मिनरल्स इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम। यहाँ पे रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स तक, अब लीव्स से आगे फ्लावर और फ्लावर से आगे फ्रूट, वहां तक ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो फ्लोएम टिश्यूज करते हैं लीव्स से। यहाँ पर क्या होता है, लीव्स क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके ऑर्गेनिक फूड बनाती है प्लांट के लिए। ए से कार्बोहाइड्रेट, ए से शुगर, और इसी से फ्लावरिंग होती है, फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसफर हुआ लीव से लेकर फ्लावर, फ्लावर से लेकर के फ्रूट, और वो सबका सब एज ए सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो जाइलम का लिक्विड फ्रूट था, लेकिन यहाँ पर
एंजियोस्पर्म्स ही करते हैं। इसलिए एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलते हैं, सीड ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीड ट्यूब्स, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये सीड ट्यूब्स। फिर मैंने बताया कंपेनियन सेल, इसके पास में इस तरह की छोटी सेल्स मिलती है, वह फ्लोरल पैरेन्काइमा और फ्लोरल फाइबर्स। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर सेम टू सेम जैसे जाइलम में थे वैसे ही फ्लोएम में होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को ऑफर्स करते हैं फ्लोएम के अंदर। तो सबसे फर्स्ट है सीड ट्यूब। सीड का मतलब क्या होता है? सीड जो होती है हम अगर घर में लेते हैं किचन में तो वह फ्लोर को यहाँ पे क्या करती है? सीड करने का काम करती है। तो वैसे ही इसके अंदर भी जो सीड ट्यूब्स बनी हुई है, यहाँ देखिए फ्लोएम का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये सीड ट्यूब्स होती है, यहाँ जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को सीड करने का काम करती है, क्योंकि यह ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को लीफ से फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट तक पहुंचाती है, इस वजह से। फिर यहाँ पर सीड ट्यूब के बाद में है फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है यह लाइव टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं और इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टिश्यूज को। उसके बाद में आता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वह इसके अंदर जो स्टेरिक सीड्स वगैरह होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। और यह फाइबर्स जो होते हैं यह उसको प्लांट को फ्रूट को जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन करते हैं। उसके बाद में आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो होती है फूड को स्टोर करती है एज ए फैट के रूप में और इसकी सेल वॉल जो होती है वो म्यूसिलेज की और पेक्टिन की बनी हुई होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरह से यहाँ पर ये चारों जो कंपोनेंट है इनको मैंने इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है। अब आता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। मैंने फ्लोएम का स्ट्रक्चर आपको बताया कि अगर हम इसका एलएस लेते हैं किसी भी रूट का और स्टेम का तो उसके अंदर जो होता है यहाँ पर ये मैंने आपको बताया ये जाइलम होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। यह इसकी एनाटॉमी है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, जो रूट और स्टेम का लेकर के अगर मोस्ट ऑफ जो स्टेम होते हैं जो डाइकोटिलोन स्टेम उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, मोनोकोट में नहीं दिखता है, मोनोकोट में कम ऑब्जर्व होता है। तो डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट के अंदर यहाँ पे स्टेम के अंदर मिलता है पिच, ठीक है, ओनली स्टेम में, रूट में नहीं होता है पिच। फिर यहाँ से इसके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है, ये कहलाता है जाइलम और इसके अंदर ये वाले जो होते हैं ये सब होते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम्स भी होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो फर्स्ट प्राइमरी सेल्स बनती है वो प्रोटो, वो जो सेकेंडरी सेल्स बन के कन्वर्ट होती है वो मेटा। जो मेटा होते हैं वो पिच के पास में सेंटर के ऊपर रहते हैं और प्रोटो पेरिसाइकल के पास में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको आज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की एनाटॉमी एक्सप्लेन कर दी है। आप इसे अच्छे से ऐसे कंपैरेटिव कर लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके किस तरह की इसके अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर है उसको जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसे ऑब्जर्व करके इसे अच्छे से समझ के फिर लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स? Hello students, welcome back in my class and 11th standard NCERT syllabus biology chapter number 6 anatomy of flowering plant. I explain you the complex tissues structure xylem and phloem. Now today I am explaining you the tissue system. Okay, tissue system, when all tissues are connected to each other then they consist the tissue system. Okay, the tissue system are 3 types. What are epidermal tissue system, the ground tissue system and the vascular tissue system. In the epidermal tissue system means epidermis. This is consist of the outermost covering of the all organs of the plant. जितने भी ऑर्गन्स है प्लांट के, स्टेम, रूट, लीफ, सबकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वह कहलाती है एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस जो होती है यह कंप्लीट कंसिस्ट करता है किसको? एपिडर्मल टिश्यूज को। और एपिडर्मिस जो होती है मोस्ट ऑफ किसके ऊपर ज्यादा पाई जाती है?
और लीव्स के ऊपर जो होता है स्टोमेटा सेल होती है। उसकी एनाटॉमी में अगर हम लीव्स की एनाटॉमी देखते हैं, उसका टीएस काट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें इस तरह का स्टोमेटा के ऊपर गार्ड सेल स्ट्रक्चर दिखता है। तो यह एपिडर्मल टिश्यूज होता है, मोस्ट ऑफ लीव्स के ऊपर ओकर्स होता है एनाटॉमी में। और यह लीव्स जो होती है, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर ये स्टोमेटा जो है, यह गार्ड सेल जो होती है, इसी से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जिससे लीव्स जो होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती है और एक्सिस वाटर जो होता है उसको आउटर करके ट्रांसपिरेशन रिएक्शंस करती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एपिडर्मल टिश्यूज है, यह किससे कंप्राइज होता है? एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ट्राइकोम्स एंड हेयर्स होते हैं वह प्लांट की जो रूट्स होती है, इस रूट्स के ऊपर आते हैं, यह है हेयर्स। और यहाँ पे ट्राइकोम्स होते हैं जो रूट को सपोर्ट करते हैं। तो यह भी इसकी आउटर लेयर ही हुई एपिडर्मल लेयर। तो यह जो भी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट के ऑल ऑर्गन्स की, वह सब कुछ कंसिस्ट होती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। और यह स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा के रूप में और रूट के ऊपर ट्राइकोम्स और हेयर्स के रूप में। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन जो लीव्स में स्टोमेटा करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल एंड टू प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, टू occurs the photosynthesis reaction and transpiration। ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। और अगर रूट के अंदर ट्राइकोम्स और हेयर्स है तो वो रूट को सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, उसके ग्रोथ होने के अंदर, उसके डिवीजन होने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कंपोस्ट गार्ड सेल लीव्स के ऊपर पाई जाती है और स्पेशलाइज्ड हिट शेप की जो होती है वह सेल्स में पाई जाती है, जो सब्सिडियरी सेल्स कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर गार्ड सेल के ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल है जो सब्सिडियरी सेल्स कहलाती है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की साइज और शेप को कंट्रोल करने का वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का देखिए, मैंने एनाटॉमिकल ये डायग्राम लेकर के एक्सप्लेन करती हूँ, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर देखिए ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वह कॉर्टेक्स, पिट और पेरिसाइकल से मिलकर बने होते हैं। और इसके अंदर जो टिश्यूज आते हैं वह सिंपल टिश्यूज से कंसिस्ट होते हैं। और सिंपल टिश्यूज जो होते हैं, ये पूरी जो लेयर है, कॉर्टेक्स बन रहे हैं, पिच बन रहा है, पेरिसाइकल, ये सबके सब सिंपल टिश्यूज जो होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से कंसिस्ट होते हैं। तो ग्राउंड टिश्यूज सिस्टम इज कंसिस्ट फ्रॉम द सिंपल टिश्यूज एज ए पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, and it's formed in the anatomical root or stem diagram as a form of cortex, pericycle and pit. Okay, so cortex, pericycle, pit and medullary rays. And chloroplast also contain its mesophyll cells. Mesophyll cells are found on its, so they contains the chlorophyll also. And chlorophyll function is to occurs the photosynthesis reaction in the plant, in the leaves, and it's made the organic food for the plant. Okay student, तो इस तरह से यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे अगर इसकी रूट की या स्टेम की अपन एनाटॉमी लेते हैं, उसका रूट का या स्टेम का टीएस सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं, तो अपने को इस तरह का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें यहाँ पे जो दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मल टिश्यूज का है, और ये पूरा ग्राउंड टिश्यूज है। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर कॉर्टेक्स, पिट और पेरिसाइकल, ये तीनों के तीनों जो है सिंपल टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब थर्ड टिश्यू सिस्टम जो है वह आता है द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ जो पेरिसाइकल हुआ यहाँ तक का ग्राउंड टिश्यू, इसके अंदर आता है कौन सा? वेस्कुलर, जिसके अंदर वेस्कुलर में आते हैं कौन से? वेस्कुलर टिश्यूज, जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो आया है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है, ये वाले कहलाते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और यही मिलकर के प्लांट को वाटर और मिनरल्स होते हैं वह रूट, स्टेम
और लीव्स में सप्लाई करते हैं ऐसे फ्रूट के रूप में जाइलम, और फ्लोएम जो होते हैं वह ऑर्गेनिक फूड जो होता है वह ट्रांसफर करते हैं थ्रू द लीव्स टू द फ्लावर एंड फ्लावर टू द फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो यहाँ पे देखिए वेस्कुलर सिस्टम में किस तरह से 3 टाइप्स के अंदर अरेंज होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एनाटॉमी बताई, इसके अंदर इस पेरिसाइकिल के अंदर जितने भी होते हैं वो सब वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनकी यहाँ पे एनाटॉमी डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लांट्स में। ये मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जो होता है इसके अंदर यहाँ पर कैम्बियम नहीं होता है, ये रेडियली स्पेस के अंदर ये देखिए रेडिकल सिमेट्री के अंदर यहाँ पर इस तरह से अरेंज है। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ठीक है, इसके अंदर कैम्बियम नहीं है। फिर आता है कॉन्जॉइंट क्लोज। कॉन्जॉइंट क्लोज मतलब जिसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें उनके स्टेम के अंदर रूट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पे इस तरह का जाइलम का स्ट्रक्चर और फ्लोएम का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज इन द वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे अरेंजमेंट का डायग्राम बनाया हुआ है। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज होती है एंजियोस्पर्म की, मोनोकोट और डाइकोट, उसमें इस तरह का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। ये मोनोकोट के अंदर होता है रेडिकल, जिसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्लोज टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए किसी स्पीसीज में ये फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज। और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन सब में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये देखिए रिंग दिख रही है दोनों के बीच में, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिंग, ये कहलाती है कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो ये हो गया जाइलम, ये फ्लोएम, और इस टाइप का टिश्यू सिस्टम कहलाता है कॉन्जॉइंट ओपन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और मोस्ट ऑफ जो ये वेस्कुलर सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड, वो लीव्स और स्टेम्स के अंदर मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका एक एनाटॉमी ऑफ टिश्यू सिस्टम टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।